Hello everyone. Hello students. How are you all? I hope you all are fine. Okay. So, children, in last video we have discussed the third chapter, that is the earth and its living world. Okay. So, in last class we have completed the third chapter. Okay, so in today's class we are going to learn the second chapter, that is motion of the earth. So what is the name of our second chapter? Motions of the earth. Okay, so what is the meaning of motions of the earth? Motions of the earth means जो पृथ्वी की गतियाँ होती है उसे हम क्या कहेंगे? मोशंस ऑफ द अर्थ. ओके, so today we are going to learn the second chapter, that is motions of the earth. Okay, so rotation. So we are go to the topic rotation. Okay, so try this. So take a top, spin it and observe its movement. Okay, so first of all try this. आपको क्या करना है? एक एक्टिविटी करनी है. Which is this activity? So take a top, आपको एक टॉप लेना है एंड स्पिन इट एंड ऑब्जर्व इट मूवमेंट. आपको एक टॉप लेना है और उसको क्या करना है? स्पिन करना है. ओके, और उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है. सो we can see that the top turn around itself. So in this figure we can see that the top turn around itself. हमें इस फिगर से क्या पता चल रहा है कि जो टॉप है वो खुद के अराउंड में घूम रहा है. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट टर्न्स अबाउट इटसेल्फ एक्चुअली टर्न्स अराउंड अ सर्टन इमेजिनरी लाइन. सो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो खुद के अराउंड में घूमता है. मीन्स वो किसके अराउंड में घूमता है? एक सर्टन इमेजिनरी लाइन के अराउंड में घूमता है. ओके, सो द टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड itself is called rotation. So what is the definition of rotation? What is the definition of rotation? The turning of an object around itself is called rotation. So what is the meaning of this definition? So कोई भी object जो खुद के around में घूमता है उसे हम क्या कहेंगे? rotation. So the turning of an object around itself is called rotation. Okay, and this is the picture of top. Okay, so in this picture what we observe? So in this picture what we observe? So this is the imaginary line. What is this? This is the imaginary line. Okay, so this is the imaginary line of, one more time I am draw. So this is the imaginary line. Okay, what is this? This is the imaginary line. Okay, so the imaginary line around which it rotates is called the axis of rotation. मीन्स इमेजिनरी लाइन होती है क्या? सिर्फ हम उसे इमेजिन करते हैं. सो दिस line is called as the imaginary line. Okay, so the imaginary line around which it rotates is called the axis of its rotation. So जो imaginary line है, so this is nothing but this is the imaginary line. What is this? This is the imaginary line. Okay, so the top rotates अराउंड इमेजिनरी लाइन. मीन्स जो टॉप है वो एक इमेजिनरी लाइन के अराउंड में क्या कर रहा है? घूम रहा है. ओके, सो वो एक सर्टन इमेजिनरी लाइन के अराउंड में घूम रहा है. सो उसे हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी लाइन. ओके, बट द इमेजिनरी लाइन अराउंड विच इट रोटेट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ इट्स रोटेशन. सो जो टॉप है वो इमेजिनरी लाइन के अराउंड में घूम रहा है, उसे हम क्या कहेंगे?
axis of its rotation. Okay, so what is the definition of axis of rotation? So the imaginary line around which it rotates is called the axis of rotation. मीन्स जो imaginary line है उसके अराउंड में जो टॉप घूम रहा है उसे हम क्या कहेंगे? axis of rotation. Okay, so rotation. Then next topic is the earth rotation. What is the next topic? Next topic is the earth rotation. Okay, so take a globe, so try this. Okay, so earth rotation. Okay, so go to the next topic, that is earth rotation. So take a globe like the one in the picture and स्पिन इट. ओके, सो आपको क्या लेना है? एक ग्लोब लेना है. ओके, सो टेक ए ग्लोब लाइक द वन इन द पिक्चर. सो आपको जो पिक्चर में ग्लोब दिख रहा है वैसे आपको क्या लेना है? ग्लोब लेना है. ओके, सो टेक ए ग्लोब लाइक द वन इन द पिक्चर एंड स्पिन इट. एंड उसको क्या करना है? हमें स्पिन घुमाना है, जैसे हमने टॉप लिया था और उसको घुमाया था. लाइकवाइज इन सेम मैनर हमें ग्लोब लेना है. ओके, और ग्लोब को क्या करना है? स्पिन करना है, मीन्स घुमाना है. सो नोट द लाइन अराउंड विच इट रोटेट्स. फिर हमें क्या करना है? एक लाइन को नोट करना है. जैसे हमने इमेजिनरी लाइन को देखा था वैसे ही हमें कौन से लाइन के अराउंड में ग्लोब घूम रहा है वो लाइन को क्या करना है? नोट डाउन करना है. ओके, देन हमें क्या करना है? नाउ टेक अ प्लम लाइन. देन हमें क्या लेना है? प्लम लाइन लेना है. क्या लेना है? प्लम लाइन लेना है. ओके, सो दिस इज द plumb line. Okay, what is this? This is the plumb line. Okay, so this is the plumb line. So now take a plumb line and hold it close to the globe as shown in the figure. So जैसे आपको फिगर में दिख रहा है हमें क्या लेना है? एक प्लम लाइन लेनी है और ग्लोब के बिल्कुल पास पकड़ के रखनी है. ओके, इफ़ वी कैन नॉट गेट अ प्लम लाइन टाई अ लॉन्ग थ्रेड टू एन इरेजर एंड मेक वन. अगर हमारे पास प्लम लाइन नहीं होगी तो हमें एक थ्रेड लेना है और थ्रेड को इरेजर बांधना है. अगर हमारे पास प्लम लाइन नहीं होगी और उसको इमेजिन दिस इज़ द प्लम लाइन. ओके, उसे हमें क्या इमेजिन करना है? वो क्या है? हमारी प्लम लाइन है. ओके, सो you will see that the plumb line and the earth axis are at an angle to each other. So this is the plumb line. What is this? This is the plumb line and this is the axis of rotation. Okay, what is this? So this is the plumb line. Okay, and this is the axis of rotation, which axis of rotation. So the plumb line and the earth axis are at an angle to each other. So जो axis है, this is the plumb line and this is the axis. ये क्या बना रहे हैं? ये यहाँ एंगल बना रहे हैं. सो दिस इज़ द एंगल. ओके, जो एक्सिस है उसकी वजह से क्या बन रहा है? जो एक्सिस है और जो प्लम लाइन है उसकी वजह से क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है. सो दैट इज़ द अर्थ एक्सिस इज इंक्लाइंड. इससे हमें ये पता चलता है कि अर्थ का एक्सिस कैसे है? इंक्लाइंड है. ओके, सो द अर्थ एक्सिस इज इंक्लाइंड मीन्स इससे हमें ये पता चलता है कि अर्थ का एक्सिस कैसे है? इंक्लाइंड है मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्लाइंड? इंक्लाइंड मीन्स झुका हुआ है. ओके, इंक्लाइंड मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्लाइंड मीन्स झुका हुआ है. ओके, देन द अर्थ रोटेट विथ इट्स एक्सिस इंक्लाइंड लाइक दिस. सो अर्थ रोटेट होती है लेकिन उसका एक्सिस कैसे है? इंक्लाइंड है. सो द line ns. So this is the line ns. What is this? This is the
line NS. So this is the line NS in the picture shows the earth axis. Okay, so this is the line NS show the earth axis. Okay, so this is the axis. वो क्या है, एंड जो NS लाइन आपको दिख रही है ये क्या है, दिस इज द earth axis. What is this? This is the earth axis. What is this? This is the earth axis. Okay, ये क्या है, earth axis है. Okay, then so the line NS in the picture shows the earth axis. So NS line आपको फिगर में दिख रहे हैं वो क्या है, अर्थ एक्सिस है, अर्थ का एक्सिस है. सो इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. सो जो अर्थ का एक्सिस है वो कहाँ से जाता है, सेंटर ऑफ द अर्थ. सो दिस इज द व्हाट इज दिस, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके, सो जो सेंटर है, अर्थ का सेंटर है, सो जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, NS लाइन कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ द अर्थ से पास हो रही है. सो द N. Okay, so the point N and the point S are the poles of the earth. Okay, so जो points N है, okay, so जो point N है और जो point, this is the point N and this is the point S, called as the poles of the earth. Okay, so N is the what is this, N is the north pole. Okay, N is the north pole and S is the south pole. Okay, N is the north pole and S is the south pole. If a circle were drawn around the surface of the earth exactly in between the north pole and south pole. So ये क्या है, ये क्या है, सरफेस है. ये क्या है, ये दिस इज द सरफेस. ओके, दिस इज नथिंग बट दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ. अगर हमने जो अर्थ का सरफेस है उससे हमने क्या निकाला, एक सर्कल ड्रॉ किया. सो इन बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल. सो जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है उनके बीच में अगर हमने जो अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर एग्जैक्टली हमने सर्कल ड्रॉ किया तो हमें क्या पता चला, ये इट फुल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. उसका अगर हमने अर्थ का जो सरफेस है वहाँ अगर हमने सर्कल ड्रॉ किया, सो इट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स. वो अर्थ का 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे. सो दिस इमेजिनरी सर्कल इज कॉल्ड द इक्वेटर. सो उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेटर. ओके, सो दिस इज द इक्वेटर. व्हाट इज दिस, दिस इज द इक्वेटर. सो इक्वेटर की वजह से कितने पार्ट हुए हैं, अर्थ के 2 पार्ट हुए हैं. सो दिस इज द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज द साउथर्न हेमिस्फीयर. व्हाट इज दिस, this is the northern hemisphere. Okay, this is the northern hemisphere and this is the southern hemisphere. Okay, so this is the northern hemisphere and this is the southern hemisphere. Okay, so the two equal parts it makes of the earth are called the northern hemisphere and the southern hemisphere respectively. So जो इक्वेटर है, इक्वेटर की वजह से अर्थ के 2 पार्ट हुए हैं. सो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर. ओके चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. थैंक यू.